हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप का क्वेश्चन आंसर्स। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको इसका चैप्टर जो है वो पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली ए शॉपर। तो आंसर लिखेंगे कि रे बीइंग deaf and dumb could judge the people with his eyes. In that late hour, the customer who visited his shop did not seem to be friendly. Ray felt suspicious about the presence. One of the two men was in his 20s, the other closer to 50. The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendship in his eyes. Ray observed the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक ही हैड केम टू द शॉप। आंसर लिखेंगे कि he had not come to the shop to buy anything. They had come with an intention to look the owner of his money as he was down on luck and in great need of money. अब है आपका थर्ड क्वेश्चन कि हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम। अब आंसर लिखेंगे कि रे बीइंग डिफ एंड डम्ब कम्युनिकेटेड with him by writing the words, "May I help you?" on a notepad. He smiled at his unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side, indicating to the visitor that he was deaf. अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि what do you think the man said to his friend who waited at the door। तो आंसर लिखेंगे कि the man might have informed his friend that Ray was deep and there was no need to worry about anything। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि Ray was not a pawnbroker। Why then did he lead money to people in exchange for their old watch and clocks। तो आंसर लिखेंगे कि रे वॉज नॉट ए पॉर्न ब्रोकर, अ पर्सन हु लेट्स money on security of some items. He did not lend money on interest. He only lent money to people in exchange for their old watches and clocks because he knew that they were in need of money. He kept the watches till the owner wanted them back and he would return them at same price he had paid with no interest। अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ए ग्रेट पावर्स। इन वॉट सेंस डिड इट हैज़ ग्रेट पावर्स। तो आंसर लिखेंगे कि द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड great powers because it was something that could be exchanged for money and a way to lead people out of a bad situation. The older man got the money he needed without hurting Ray on Christmas Eve. It had saved the two men who entered the shop from doing something they might later have been sorry for। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच। आंसर लिखेंगे कि रे हैड पेड द मैन फार मोर देन वॉट द वॉच वॉज एक्चुअली वर्थ। इट इज़ वेरी अनलाइकली
that the man would return, but at the same time, he seems to appreciate his generosity, and when Ray looked into his eyes, he saw gratitude, and they seemed to say thank you. That is why he left a note saying that he would be back to pick up the watch as soon as he could, and wished Ray a Merry Christmas. अब 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली। तो आंसर लिखेंगे कि द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली व्हेन ही गॉट द मनी फॉर हिज वॉच विच वॉज नॉट what worth $50, also by giving him the money in exchange for the watch. Ray had prevented him from doing something he would be later sorry for. तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो चुका है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा पढ़ के, और अगर समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको पढ़ के अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मन लगा के पढ़िए इसे और याद कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।